Hello, my dear students. Welcome in another video lecture of our biodiversity of chordate paper. In this video lecture, we are going to discuss about the urinogenital system of Scoliodon, that is dogfish. So, in this video lecture, we will talk about the male urinogenital system. Now, what is urinogenital system? In all vertebrates, the urinogenital system comprises two systems, that is excretory system. It is you can just say that is the combination of excretory system and reproductive system. So they are commonly called as urinogenital system because the excretory system and reproductive system are closely related, so they are just studied under single urinogenital system. When we are talking about the urinogenital system, अभी मैंने बोला कि excretory system is there and reproductive system is there. So firstly we will talk about the excretory system. Excretory system में क्या आता है? Everyone knows that कि जो higher animals है, जो vertebrates है, वहाँ पे kidneys होते हैं. Then there are nephrons, जो पार्ट है किडनी का, एंड नेफ्रॉन्स में होते हैं Bowman's capsule and glomerulus. So when we are talking about the kidney of Scoliodon, so let us come to the diagram. Hopefully you can easily watching this, or it is this is the kidney. So these are the two kidneys of Scoliodon. And when we are talking about the kidney of Scoliodon, so it is mesonephric type of kidney. Okay, mesonephric because it is made up of mesonephrons, so it contains mesonephrons in. So mesonephrons क्या होते हैं? When in embryonic conditions, जब किडनी प्रिपेयर होती है तो वहाँ पे प्रोनेफ्रॉन्स होते हैं और फिर उसके बाद वो डेवलप होते हैं, मेसोनेफ्रॉन्स डेवलप होते हैं. सो इन दिस स्कॉलिडॉन ये जो प्रोनेफ्रॉन्स है ये नहीं है, ओनली मेसोनेफ्रॉन्स आर देयर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मेसोनेफ्रॉनिक किडनी. ओके, नाउ जो मेसोनेफ्रॉनिक किडनी है, सो इसका स्ट्रक्चर यहाँ नहीं, इस डायग्राम में आपको अच्छे से दिखाई देगा. It is a sketch of urinogenital system. So here you can observe. So this mesonephronic kidney of Scoliodon is divided into two parts. ये upper portion आपको दिखाई दे रहा है and this is the lower portion. So in upper portion it has certain tubule like or circular or cylindrical structure are there. जिनका काम है या फिर जो नॉन एक्सक्रीटरी इन फंक्शन है, यानी वो एक्सक्रीशन नहीं करवाते हैं, दे आर नॉन एक्सक्रीटरी इन फंक्शन. ओके, एंड इसका जो नेम है, इट इज कॉल्ड एज, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज एपिडाइडमिस. तो इस पोर्शन को क्या बोल रहे हैं? दिस मच पोर्शन इज कॉल्ड एज, दिस मच पार्ट इज कॉल्ड एज एपिडाइडमिस. एंड जो सेकेंड हाफ है या निचला पोस्टीरियर जो पार्ट है, वहाँ पे क्या होंगे? नेफ्रॉन्स हैं, मेसोनेफ्रॉन्स आर देयर एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज ओफिस्थोनेफ्रॉन. ओके, इसका नेम क्या है? ओफिस्थोनेफ्रॉन. यहाँ क्या है? मेसोनेफ्रॉन्स प्रेजेंट है. सो यू कैन ऑब्जर्व दिस आर द मेसोनेफ्रॉन्स प्रेजेंट इन, and opisthonephron is excretory in function. Okay, so जो upper part है epididymis, that is non excretory, and the lower portion, posterior portion of kidney is excretory in function. Both kidneys are similar. तो मैं एक portion डिटेल में बताऊंगी तो दूसरा भी वैसे ही वर्क करता है. ये जो पोर्शन है, एज वी आर राइट नाउ डिस्कसिंग अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो यहाँ पे क्या होंगे? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ इस पोर्शन में. ओके, एंड दिस यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स opens into the duct called as urinary duct. Okay, so this opens into the urinary duct
and this urinary duct opens into the sinus. So you can observe here this conical triangular inverted triangular structure. So this is the sinus, and this urinary duct opens into the sinus with aperture, या फिर हम बोल सकते हैं कि opening. With the opening, urinary duct opens into the sinus, and from this sinus, this is open outside of the body with or in cloaca. Okay, so here the excretion is done. So whatever excretory material is there, it is filtered in the kidneys, in uriniferous tubules, and uriniferous tubules opens into the urinary duct, और urinary duct से वो साइनस में खुलते हैं, और फिर साइनस के बाद वो डायरेक्टली जाके क्लोइका में खुलते हैं, और जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो एक्सक्रीट किया जाता है आउट ऑफ द बॉडी. नाउ दिस वॉज अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम. जो दूसरा सिस्टम है दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो अब we are talking about the male reproductive system. So what the male reproductive system comprises? It comprises testes, जिसमें होते हैं seminiferous duct, seminiferous tubules. Seminiferous duct is there and seminal vesicles are also there. और क्या होंगे? seminal vesicles होंगे. So these are the part of reproductive system. So you can observe here, ये जो blue color का structure दिखाई दे रहा है, so this is the testes. These are the testes. जो start कहाँ से है? So this portion is rectal gland. Sorry. So this is the rectal gland, और rectal gland का मैंने आपको digestive system के टाइम पे ही बोला था that its work is not confirm yet, अभी तक पता नहीं है. So यहाँ से arise होती है ये testes, दो testes arise होती हैं, and these testes just produces sperms. तो जो भी होगा स्पर्मियोजेनेसिस, सारा का सारा स्पर्मियोजेनेसिस इस टेस्टीज में होगा, एंड दीज टेस्टीज आर कनेक्टेड टू द दिस testes are connected to the epididymis. Okay, and they are connected by the mesorchium. Okay, ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, so this portion whatever you watching here is mesorchium. So इस mesorchium से ये attached है to the epididymis, and sperms are developed into it, and यहाँ से testis से ये sperms जाते हैं epididymis में, and epididymis is having certain folding or cylindrical ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आई सेड. तो वहाँ पे क्या होता है? सो दीज आर कॉल्ड एज वैसा इफ्रेंशिया, यानी जहाँ तक वो इपिडिडमिस में है तब तक ये फोल्डिंग्स को हम क्या बोलेंगे? वैसा इफ्रेंशिया. आई राइट हियर वैसा इफ्रेंशिया. सो दिस इज द नेम ऑफ द फोल्डिंग्स. तो यहाँ पे क्या होगा? ये स्पर्म्स यहाँ पे कलेक्ट होंगे, एंड दिस स्पर्म्स विल गेट सर्टेन न्यूट्रिशन. तो यहाँ पे एक सिक्रीशन सिक्रीट होता है, एक लिक्विड सिक्रीट होता है जो क्या करता है? इन स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. उसके बाद जैसे ही ये सिलेंड्रिकल जो फोल्डिंग्स है ये बाहर थोड़ा जब एपिडिडमिस ख़त्म हो जाता है तो ये फोल्डिंग्स फिर से आगे बढ़ती है, तो तब इन फोल्डिंग्स को बोला जाता है वैस डिफरेंशिया. इट्स वैस डिफरेंशिया. ओके, वैस डिफरेंशिया में भी क्या होता है? वहाँ पे भी वही होगा सेम. वहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा, वहाँ पे उनको स्पर्म्स को न्यूट्रिशन मिलेगा. उसके बाद वो और वाइड होगी, ये वैस डिफरेंशिया आगे जाके और वाइड होगी. यू कैन ऑब्जर्व हियर, ये हो गई वाइड. सो इट विल बिकम अ
बिट वाइडर, और उसको पोर्शन को हम बोलेंगे सेमिनल वेसिकल. दैट पोर्शन इज नेम्ड एज, सो दिस पोर्शन इज नेम्ड एज सेमिनल वेसिकल. सेमिनल वेसिकल में क्या होता है, यहाँ पे भी एक मीडियम सिक्रीट होता है जो क्या करता है, कलेक्शन करता है ऑफ स्पर्म्स. सो सेमिनल वेसिकल में क्या होगा, इट सिक्रीट्स सर्टेन मीडियम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ स्पर्म्स. ओके, और फिर आगे जाके ये जो सेमिनल वेसिकल है वो ओपन होता है इनटू द साइनस थ्रू अपर्चर, या ओपनिंग बोलेंगे हम. अब ये ओपन तो होता है लेकिन इट विल गिव आउट द स्पर्म्स ओनली एट द फेवरेबल कंडीशंस और फेवरेबल टाइम. जब टाइम होगा फर्टिलाइजेशन का तभी वो सेमिनल वेसिकल से बाहर आएंगे इनटू द साइनस थ्रू द ओपनिंग. तो यहाँ दो साइनसेस हैं और दोनों की अपनी अपनी ओपनिंग होगी. राइट ओपनिंग अलग होगी और लेफ्ट ओपनिंग अलग होगी. एंड दिस साइनस अपर्चर इज जो प्रेजेंट है उसमें वो बाहर खुलेगा विथ अनदर ओपनिंग दैट इज कॉल्ड एज, उसको हम बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल पैपिले. ओके, दैट इज कॉल्ड एज यूरिनोजेनाइटल पैपिले. सो ये ओपन होती है फॉर रिलीजिंग स्पर्म्स. एंड वहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, सो यहाँ स्पर्म्स फेवरेबल कंडीशन में ही बाहर आएंगे. नाउ दिस टू अनदर स्ट्रक्चर्स आर हियर, these structures. So these are the sperm sacs. So their function is still unknown. अभी पता नहीं है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द हेल्पर सेल्स जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं. सो देर आर हेल्पर ऑर्गन्स, आई एम सॉरी, हेल्पर ऑर्गन्स. तो फर्स्ट है क्लैस्पर, क्लैस्पर्स आर देयर. एंड दूसरा है दैट इज साइफन. Clasper is there and siphons are there. So clasper एक rod like structure है जो मेल में होता है. ये जब मैंने आपको बताया था about general characteristics या morphological structures जब हमने देखा था तब देखा था कि सिर्फ मेल में claspers present होते हैं. So these are the acts as copulatory organ. So यहाँ पे क्या होगा, clasper जो होते हैं तो उनमें एक ट्यूब होता है जो एंटीरियर साइड पे एपोपाइल ओपनिंग से खुलता है. जो ओपनिंग होती है उसको एपोपाइल बोला जाता है और जो पोस्टीरियर साइड पे ओपनिंग होती है उसको हाइपोपाइल बोला जाता है. ओके, एपोपाइल एंड हाइपोपाइल. और इसी क्लैस्पर के साइड में एक डक्ट या सैक लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी को साइफन बोला जाता है. यहाँ पे भी दो सैक्स होते हैं साइफन में अलग अलग. सो ये मैं दूसरे कलर से बताती हूँ. सो दिस इज़ द साइफन और यहाँ पे साइफन में अलग दो बैग लाइक और स्ट्रक्चर होते हैं और साइफन भी यहाँ पे ओपन होता है. तो यहाँ क्या होता है बेसिकली, ये कैसे हेल्प करते हैं, तो यहाँ साइफन में जब फर्टिलाइजेशन कर रहे होते हैं या कॉपुलेशन होता है तब पानी भर जाता है साइफन में. और ये साइफन की ओपनिंग एपोपाइल के पास में ही है. और यहाँ से जब जो कॉपुलेशन होगा तो जो मेल बॉडी है तो वहाँ से स्पर्म आएगा और फिर ये वाटर करंट यहाँ से जो है वो बाहर दिया जाएगा और इस वाटर करंट की हेल्प से स्पर्म को इंट्रोड्यूस किया जाता है इनटू द बॉडी ऑफ फीमेल. सो होपफुली यू हैव अंडरस्टैंड द कंप्लीट यूरिनोजेनाइटल सिस्टम ऑफ मेल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.